Yeah, Namaskar everyone. A very warm welcome to Medini Care's Garbhadhan program intro webinar. I welcome you all. I'm Vitika Jain and I'm your host of the day. And I welcome everyone on behalf of Medini Care. Can I request everyone to just switch on their camera? It is, very much nice to interact with people, their expressions, their faces, rather than a name on a blank black screen. Yeah, so nice, so nice. See, now my screen is full of beautiful people. Thank you very much. Thank you so much for switching it on. Now it is more inviting and more involving. So, uh, you must have received a call from this number. One fine day, you were surfing the Facebook, like your daily day routine, and you came across some Facebook ad, which clicked you, and after that, something happened, some calls happened, some communication happened, and now you are here. So, can you tell me that during this process, what made you to come to this webinar? Can you write in the chat box? Is English okay with everybody? I'm sorry, I should have this. I should have asked this before. Is English okay with everybody? क्या कोई ऐसा है जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझता है या is there anybody who doesn't understand Hindi at all? English is fine. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. So, can you write in the chat box that what made you come here? क्या सोचकर you what actually hooked you that okay I should spare this much time and I should reach to this webinar? Can I have your answers, please? Some quick answers. I really need it. For guidance, for conceiving naturally, because people have miscarriage history, people are planning pregnancy. Okay, great. So we have so many intelligent people now who can see what is happening to them and who are ready to try something really which is not in fashion. In fashion kya hai? There is so many diseases which are in fashion, but you are the people, you are the very rare people who have decided for a guided pregnancy, for an intelligent pregnancy, isn't it? Thank you so much for your answer. Now I'll take some of your screen time to build a base, to know the issue, to get what exactly we are going to offer you. Yes. So Medini Care welcomes you once again. Those people who are having issue in getting the audio of the session need to click this headphone icon and select join with computer audio or device audio or internet audio. And we suggest you to use headphones or earphones for a clearer voice quality. So, what does replicating a life mean? Is it something new that only human beings are doing? No, even this little coronavirus is doing it so, so nicely, so creatively that it is mutating in so many forms. But each life, be it a little virus, bacteria, plant, animal, bird, anything is doing is replicating the life so comfortably and naturally. They are not asking for any external support.
or any guidance towards that. They know how to do it, why to do it, when to do it. Okay, but we as a human being, being the most sophisticated mechanism of this cosmos, need so many guidance. We are facing so much problem. We are actually suffering the our intelligence. We are suffering the setup that we have made. And for us, conception is really difficult. Not only conception, but inviting a life, holding a life, nurturing a life, delivering a healthy baby, and then giving it a proper guidance, giving it a proper direction towards the future. Each step, we feel ourselves so misguided, so handicapped, isn't it? Because we have definitely no idea about creating an environment. Yes, we have so much idea, so much expertise in depleting an environment. See, we have done it so nicely. We have not left a single part of this earth untouched. But still, after being a more sophisticated life, we do not have an idea about creating an environment which is conducive for us. And whenever you apply for a job, for any post, or be it in a relationship, when you try to take up new responsibilities, you prepare for it. You make yourself eligible for performing certain duties and certain aspects, certain tasks of a particular thing. But when it comes to pregnancy, we take it for granted, okay, that we can bear a child without any qualification, without any eligibility. Also, we do not have strength with him to support the conception. At times, we feel so much depressed, so much weak in handling ourselves. So when it comes to conceiving, it is so much new to us. Yes, we will be taking question answers towards end of the session. Yeah. So another thing is, it is definitely a very, very, very big responsibility. And when the thing which we have designed around us, the stress level, the pressured life. So in our relationships also, the intimacy is reducing at a very high state, isn't it? So when we received your numbers, we made a call to you all. You must have received a call from Neha or me, Vithika. So what we came across is nowadays people are suffering from low egg count, low sperm count. People have undergone several miscarriages. They are suffering from PCODs, low AMH, failed IVFs, hormonal issue, multiple miscarriages, and that is inability to hold a life. Is one of these your reason to? Is one of these your reason to? Can you again type yes or no in the chat box? Yes, 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 yes. Definitely, it is your reason to. Now, it is not only your reason. There is a whole world is with you in this case. The population level of fertility level in the population over time is decreasing to a high extent. Not only this, miscarriages are common, and the pregnancy period is very stressful. The delivered babies are not up to the strength as required. There is so much increase in drug dependent newborns. Okay, so now we have so many issues. So it is not just about conceiving, it is also about holding, nurturing, and delivering in a different stage. So fertility cannot be, see, we have so many reasons, or these are just symptoms. Till now, whatever I have stated, these are just symptoms. There is nothing root cause in it.
Okay, so when we talk about infertility, let's start from the beginning. Let's start from the zero. Okay, so when we talk about infertility, which part is it of our life? Definitely, infertility cannot be a small part. It cannot be a small range that, okay, from this year to this year, this period is called period of fertility or period of reproduction. ओके, we'll take it in हिंदी also. हम हिंदी में भी बात करेंगे. जब हम बात करते हैं कि आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है, सो इट कैन नॉट बी जस्ट वन एस्पेक्ट. केवल 2 या 4 साल की बात नहीं होती है ना. क्या होता है, द वे यू ब्रीथ, द वे यू मेंटेन रिलेशनशिप, द वे यू आर, द वे यू फील, द वे यू ट्रीट पीपल, दिस ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी. आप जैसे हैं, आप जैसे सांस लेते हैं, आप जैसे व्यवहार करते हैं, आप जैसे खुद को रखते हैं, आप जैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, आप जैसे खाते हैं, जैसे पीते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे रहते हैं, सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है, सब कुछ भाग देता है किसमें, फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी में, है ना. सो कैन आई सम इट अप. सी, वी विल बी categorizing it in 3 main reasons of infertility. Let's take the first reason. First reason is society. What does this mean? Am I asking this society ki, am I blaming the society कि ये समाज के कारण ही मेरी जिंदगी खराब हुई है? This is the society that is responsible for my infertility or my unconception. No. In this aspect, what I mean by society is the society that we have made. See, nature gives us trigger when we are 15 years of age. Okay, but that you are ready for conception. But what we do, we tell our children, नहीं नहीं नहीं, ये सब गंदी बातें हैं. You should not look into this dimension. Okay, first you need to study, you need to make your career. आपको पहले अपनी करियर बनाना है. You need to settle in a job. You need a specialized degree. Then government job सबको थोड़ी मिलती है. Not everyone gets the government job. So you need to plan a flat, home for yourself, however small or big it is. Then you are ready with big EMIs. Then you look for a partner, and you take several years to find a partner who is compatible with you. Till now, your age is 35 years. Now, just think about it. Nature triggered you in when you were 15 years of age, and now your age is 35. That too with a lot of pressures in work front, a lot of pressure in economic fund, because घर खरीदा है ना, so EMI हमारे साथ है ना. Another thing is you have created a gap of 20 years. Is 20 years a small time? Is it a small time? Definitely no. So this is the society, this is the social cause I am talking about. So number one cause of infertility is society or the social structure that we have created. Number two cause is mishandled puberty. What does this mean? In our houses, whenever we need to store a ration, store food items for the years long to consume, is it stored just like that? No, isn't it? Our mother know the procedure. They treat the gehu, chawal, rice, dalein, pulses, spices, etc. in a certain way to keep it full of taste, full of nutrients, and unaffected by bacteria or anything else or the surrounding, so that we are able to consume the healthiest food throughout the years. Okay. So now when we talked about this, that nature triggered us at the age of 15,
and now we are asking for conception, or we are trying for conception at the age of 35. Tell me something. I want your answers. Have you done anything to protect or to maintain your puberty? I need the answer. Have you done anything to maintain or to protect your fertility, your puberty, your progeneration aspect? Of course, no, because this was not taught to us. Nobody told us this, isn't it? Yeah, thank you. Thank you for your answer. So, number third primary cause of infertility is the internal environment that we have created for us. We have designed our life around so much of traffic, so much of work pressure, and so much of stressful life that we are unable to handle. What is stress? Stress is any external condition that we are unable to handle, isn't it? Number two is altered use of this altered medicine, the incessant use of medicines in our life, be it postponing a monthly cycle, preponing a monthly cycle, taking antibiotics in normal zukam, cold and cough, and fever, etc. So we have done enough to so that our system gets deteriorated. And another thing is we are consuming altered food. No matter what you consume, your home cooked food also, your fruits also, these are so much of altered food. So this was about external environment. This was about internal environment. Now let us talk about external environment. This is very much clear to you about the pollution, the water pollution, air pollution, the earth pollution, the noise pollution. We have done it in each and every aspect we knew. जहां जहां हमें पता था हमने प्रदूषण फैला दिया. Again, the life of the earth, the plants, the fauna and flora are depleted. In the school time, आपने school में पढ़ा होगा about ecosystem, about the life cycle. So we have depleted almost 80% of fauna and flora, that is plants and animal life from the planet. You could have seen the small little goraya or the what you call the grasshopper, etc. in your childhood days. But now these species are not available, isn't it? We used to play with these, but now it is not available. Similarly, the water level has gone so much down. So these are the main causes that we have developed to deteriorate our fertility. So what is the solution? Number one solution is to reactivate your lost fertility. And number two is maintenance of the remaining fertility in you. Of course, we still have fertility. हम अभी भी fertile हैं, हम अभी भी conceive कर सकते हैं, पर हमारे पास मेथड हमें पता नहीं है कि हम रीएक्टिवेट करें और उसको बना कर रखें, है ना? तो जो आपको डॉक्टर्स ने बताया है कि आपका एग काउंट कम है, या बहुत सारे अल्फाबेट्स TSH, AMH, HB और T3, T4, भाई हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे अंदर होते हैं. We do not have any first-hand experience of it, isn't it? But now the doctors are saying that, okay, this is because of some particular set of alphabets, this is because of some particular set of numbers, isn't it? But now, what we can do? Okay, we understand that these are the causes and these are the solutions. But how to do it? So, as per our conversation with you, we are obliged, we are blessed enough to have a Kumbhak yogi, Swami Rajvibhu, with us. Who is he? He looks like a common man, like common person, like you and me, but he is extraordinary in his experience with the life, with the nature, and he has successfully cured more than 1,500 people from their chronic ailments and their medicines. They are out of their medicines because of this
yogi that we have with us. He is working for the betterment of human health because he is a human mechanics exponent. So let me stop my screen share here. And let me invite Raj Vibhuji to tell us something and guide us further into this. Raj Vibhuji. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay. So पहली चीज, it is good to see people exploring many different fronts. लोग अलग अलग चीजें ढूंढ रहे हैं. You know, people are searching for health coming out of their chronic disease. लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं अपनी डायबिटीज से कैसे ठीक हो जाऊं, कैंसर से कैसे ठीक हूं, how can I come out of my blood pressure situation, heart disease. तो ये सारी चीजें बढ़ रही है ना. You know, all these health issues and disease are on rise. Is it on rise or fall? Despite of medical science, all the disease in the world is rising. है ना? So is it really development growth? Is it called as growth and development? क्या ऐसे growth and development कहते हैं? We are missing some point. कुछ तो मिस कर रहे हैं. So one thing that we explored here, एक चीज जो हमने यहाँ पे बताया है वो ये कि we are not protecting the fertility aspect of this body. इस शरीर की fertility aspect को हम protect नहीं कर पा रहे. So Vitika said after 20 years or whatever number of years, 10 साल के बाद भी if your puberty started at 15, it starts at 12, 10, 12. आजकल तो 10-12 साल में शुरू हो जाता. Even if you delay your conception for 15 years, what are you doing to protect the fertility aspect? 10 साल अगर डिले भी करते हैं तो उसको सही हेल्थ में रखने के लिए आप करते क्या? So there is a word called samskara. एक शब्द हम बोल रहे हैं ना, गर्भाधान संस्कार. संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब creating or preserving the capability of that aspect. इसको संस्कार कहते हैं. So गर्भाधान, धान comes from a word called dharana, hold, रोकना. अब what is धारण? It has become very difficult in today's world. आजकल बड़ा मुश्किल हो गया. आप क्या सोचते हैं? कैल्शियम की कमी, your bones have gone weak, bones, हड्डियां कमजोर हो गई, तो डॉक्टर कहते हैं ना कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी, ऐसा बोलते हैं ना. Then you start taking calcium. अब मुझे एक बात बताइए, कैल्शियम की कमी किसी के कैल्शियम लेने से आज तक ठीक हुआ? Has anybody got his bones strong by taking in calcium? आप अगर कैल्शियम लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस बाय 200%. अगर आप कैल्शियम खाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं. आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होने वाली. Nobody has come out of arthritis or osteoporosis by taking in calcium. तो गड़बड़ कहां देख रहे हैं? Where are we looking? Which is wrong? Which direction are we looking? If there is a deficiency, you supply it from outside and you will become fine. This is just an idea, not a truth. आप जितने भी स्टैटिस्टिक देख लें. Now, suppose your pancreas are not functioning or your thyroid is not functioning properly. तो रीजन क्या निकाला जाता है? Your T3, T4 and TSH is not fine. ये नंबर आपके गड़बड़ हैं. So you are given a T4, synthetic T4. आपको रोज खाने को दे दिया जाता है. उससे आपका थायराइड ठीक हो गया क्या? आज तक तो ठीक नहीं हुआ किसी का. Nobody has come out of thyroid but take thyroid medicine. सिम्टम खत्म हो गया, परेशानी खत्म हुई क्या? Has your symptoms gone? No, it has not gone. पैनक्रियाज खराब हो गए, डायबिटीज हो गया जी. So taking the tablet, has your pancreas become strong? क्या दवाई खाने से आपके पैनक्रियाज स्ट्रांग हो गए? नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. So your muscles became weak.
आपके मसल्स वीक हो गए तो प्रोटीन खा लो, प्रोटीन खा लो। तो सबके मसल स्ट्रांग हो गए क्या प्रोटीन खाने से? नो, कैंसर हैज इंक्रीज, योर डिफिकल्टी हैज इंक्रीज। तो वेयर आर वी लुकिंग, विच डायरेक्शन आर वी लुकिंग? क्या हम कुछ गलत डायरेक्शन में नहीं देख रहे? आर वी नॉट लुकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन? क्या गलत डायरेक्शन में नहीं देख रहे? कुछ तो गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। ऑब्वियसली किसी ने लिखा है संस्कार इज गुणंतर धान। ओके, संस्कार बेसिकली मीन्स क्रिएटिंग अ कल्चर, कल्चरिंग समथिंग, किसी को कल्चर करना। देखिए अभी आपके जितने भी ये टेक्स्ट है ना, अंग्रेजों ने आपको समझाया है, दे डोंट नो अ बिट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उनको कुछ नहीं मालूम। तो लेट्स गेट इट वेरी क्लियर। पहली चीज, डिजीज हैपन्स, बीमारी क्यों होती है? स्पर्म काउंट कम हो गया, हाँ, एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, नंबर ऑफ एग्स हैव रिड्यूस्ड। किसकी वजह से? फॉर बिकॉज ऑफ व्हाट? आप इस तरफ जरा ध्यान से देखें, बिकॉज वी विल हैव टू ओपन आवर आईज। अगर हमको देखो इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग। सी सेक्शन सब बढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही ठीक से, एंड postpartum disease, females are taking disease in their pregnancy and they are carrying it throughout their life, पूरा जीवन कैरी करते हैं डिजीज को। just think about it, how many childs you deliver, how many childs your grandmother delivered, आपकी दादी नानी और उनके पहले कितने बच्चे उन्होंने पैदा किए थे, and still she was healthy, even in the later stages of life she was healthy। और आप एक बच्चा डिलीवर करने के बाद, दैट ऑल्सो नॉट प्रॉपरली, है ना, नॉर्मल डिलीवरी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो वेयर वेयर इज द डायरेक्शन वी आर नॉट लुकिंग एट? कहां पे हम नहीं देख रहे? हम ये नहीं देख रहे कि वी आर लूजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी। इंसान की क्षमता कम होती जा रही है, ये नहीं देख पा रहे, ठीक है ना? इंसान की क्षमता कम होती जा रही है। वो क्षमता जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, इफ यू डोंट इंक्रीज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, देयर इज नॉट अ सोल्यूशन। लेट मी टेल यू दैट क्लियरली, साफ साफ कहना, आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो इफ यू आर थिंकिंग बाय टेकिंग इन सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन यू विल बिकम फाइन, सो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अगर आप सोचते हैं कि एक दवाई खाके, विटामिन खाके आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो आज तक नहीं हुआ इन द लास्ट 50 years। ऑल द डिजीज आर ऑन राइज, यहां तक कि वी आर लूजिंग आवर इम्यूनिटी। व्हाई कोरोना हैज बिकम पैंडेमिक नाउ? कोरोना तो 50 सालों से है, कोरोना 50 सालों से है, आज क्यों पैंडेमिक बन रहा है? बिकॉज वी आर लूजिंग आवर कैपेसिटी। हम अपनी कैपेसिटी लूज कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। डायबिटीज की मेडिसिन खा के डायबिटीज ठीक नहीं होती। गिव मी वन एग्जांपल इन द होल वर्ल्ड, एक एग्जांपल दे दीजिए। थायराइड की मेडिसिन खा के किसकी थायराइड ठीक हो गया एंड द पर्सन हैज लेफ्ट मेडिसिन? गिव मी वन एग्जांपल। यू आर नॉट ओपनिंग योर आईज, आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। सो योर स्पर्म काउंट हैज कम डाउन, एग काउंट हैज कम डाउन, होल्ड नहीं कर पा रहे फर्टिलिटी, तो आपकी कैपेसिटी लूज हुई है। एक इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, इन व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फेक्शन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो जल्दी आएगा, ऐसे ही आपकी कैपेसिटी कमजोर हो गई तो बीमारी जल्दी आएगी। इफ योर कैपेसिटी बिकम्स लेस यू विल गेट इनटू डिजीज फास्टर, आप जल्दी आएंगे डिजीज में। सो लेट्स एक्सप्लोर अ लिटिल बिट मोर, लेट्स एक्सप्लोर अ लिटिल। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, यू नीड टू सी इट, आपको इसको समझना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, समझना पड़ेगा। ओनली देन देयर विल बी अ सॉल्यूशन। केवल बातें करने से सॉल्यूशन नहीं होता। आई कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, गिव मी एनी लॉजिक, आई विल मेक इट फेल। कोई भी लॉजिक दे दो, मैं उसको
गलत साबित कर दूंगा। नहीं, वी नीड टू सी इट करेक्टली, वी नीड टू सी द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन की सच्चाइयां हमको देखनी पड़ेंगे। सो लेट्स गो अ लिटिल अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस लाइफ। सो टेक सम सीड्स, कुछ बीज लें, गो टू द मून एंड स्प्रेड इट देयर, चांद पे जाएं वहां फैला दें, और गो टू मार्स, किसी दूसरे ग्रह पे जाएं फैला दें। विल इट स्प्राउट? क्या उसमें कोपलें निकलेंगी? क्या वो स्प्राउट करेगा? क्या वो स्प्राउट करेगा? चांद पे डालने के बाद बीज स्प्राउट करेगा क्या? क्या पौधा उग जाएगा? नहीं, ओनली ऑन अर्थ इट विल स्प्राउट। पृथ्वी पे केवल स्प्राउट करेगा, इट विल नॉट स्प्राउट ऑन एनी अदर प्लैनेट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अर्थ हैज समथिंग कॉल्ड एज अ लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम। पृथ्वी पे जीवन निर्माण का वातावरण है। हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है? देयर इज अ लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जिसको इस्तेमाल करके, यूजिंग दैट लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम, वी आर लिविंग। यूजिंग दैट लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम, अ प्लांट स्प्राउट्स अप, ग्रोज अप। यूजिंग दैट लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम, an animal take life। तो इसी जीवन निर्माण के वातावरण को हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंटरनेट में नहीं मिलने वाला आपको। सो if you will not be able to use this life creating ecosystem properly, तो आपके अंदर डिफिकल्टी आएगी ना। So your loss of capacity to utilize this life creating ecosystem creates disease. अब सपोज कीजिए, मैं एक बताता हूं, I'll go from out to in। एक पहले इस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, then we'll talk about internal factors। तो how much alive, how much healthy you are, what does it depend upon? How much of this life creating ecosystem you are able to utilize? आप कितना इस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पर हमने क्या किया? We have depleted this life creating ecosystem to a larger extent, अपनी बेवकूफी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, I'll give you one example। स्ट्रेस बढ़ रहा है, you all know this। आप सभी जानते हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा आपने। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी। ग्रेविटी अपने आप को खींचती है नीचे, बट यू ग्रो टॉल, आप ऊपर उठ जाते हैं। ट्रीज ग्रो अप, ऑल द बर्ड्स फ्लाई अप। सो ग्रेविटी अगर नीचे खींच रही है, इफ द ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन, व्हाई यू आर ग्रोइंग अप? बिकॉज देयर इज अ फैक्टर इन द एनवायरमेंट। वातावरण में एक फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज उदाना, और अपवर्ड मूविंग फैक्टर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू ग्रो टॉल। सपोज यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस फैक्टर, इस फैक्टर को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो देन यू विल फील हेवी इन द बॉडी एंड माइंड। आपको शरीर में और माइंड में हेवीनेस फील होगा। सुबह सुबह उठने में तकलीफ आ रही है ना सबको। सो यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस फैक्टर कॉल्ड उदाना प्रॉपरली। इफ यू फील हेवी इन द बॉडी एंड माइंड, व्हाट इज दिस स्टेट कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। आप सोच रहे हैं आपके काम की वजह से स्ट्रेस है, नहीं, आपको काम नहीं भी है तो भी स्ट्रेस है। just see, if you are completely fine in work front, काम में, परिवार में सब कुछ ठीक है, even then you are facing stress. Not only stress, you are going towards depression में आ रहे हैं, heaviness feel हो रहा है माइंड में, you are getting stuck in a thought। तो इसका मतलब क्या है? This upward moving factor called udana, you are not able to utilize it। आप इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। Now let's come to inside of the body। शरीर के अंदर जरा देखते हैं। You are not able to utilize these factors। ये बात आप मान लीजिए। Why you are not able to utilize? First of all, we have depleted this life creating ecosystem। हमने इसको थोड़ा नुकसान कर दिया। We have completely changed the environment। वातावरण को बदल दिया। We have changed our food। हमने अपना खान पान बदल दिया। So who designed our body? हमारे शरीर को किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? You know the name of the scientist who designed our body? मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं पढ़ा? So no doctor, no scientist designed our body। Who designed them? किसने डिजाइन किया? तो अगर इस वेबिनार में एक अफ्रीकन आ जाता है, some African joins this webinar and you see that African, आप उसको देखते हैं, तो what will you say? आप क्या कहेंगे? Oh, African। आईडी भी नहीं मांगे, you will not ask for an ID।
You will say African. The moment you look at a person, you know where does the person belong to. वो कहां से belong करते हैं आपको पता चल जाता है. तो उसके शरीर को किसने डिजाइन किया? Who designed his body? Africa. Isn't it? जब आप अफ्रीकन बोलते हैं तो who designed his body? Africa. What is Africa? It's an environment. वो एक वातावरण है. So an environment designs our body, है ना? And we have depleted 80% of this environment. 80% environment को खराब कर दिया हमने. तो अगर environment ने हमारी body को डिजाइन किया, so we destroyed the environment, so of course the body will come into problem. Body को problem में आएगा ना. Secondly, this body was designed for natural food. प्राकृतिक भोजन के लिए ये शरीर डिजाइन हुआ था. See, from morning to evening, what are you eating? Altered food, genetically modified, cooked, processed, packaged. है ना, यही खाते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक. Body was not designed for this food. So will this body not get into problem? Third thing, very important factor. Tell me, was your body designed for medicine? क्या आपका शरीर मेडिसिन के लिए डिजाइन हुआ था? If nature designed your body, it was not designed for modern reductionist chemical medicine, allopathic medicine. So there is a professor in Yale University. He found that any allopathic medicine you take, it disturbs the whole body. कोई भी allopathic medicine आप खाते हैं, वो पूरे शरीर को disturb करता है. Now what I am saying is, मैं क्या बोल रहा हूं? All your medicine is destabilizing human genome. It is not destabilizing your body only. आपके शरीर को ही खराब नहीं कर रहा ये पूरी मानवता के जीनोम को खराब कर रहा है. इसीलिए आप देखिए कोई भी बीमारी बढ़ रही है. Every disease is increasing. So when your body was not designed for medicine, you think by taking in medicine you can become healthy. कहां सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ये? Where is the common sense? कॉमन सेंस कहां गया? डीजल गाड़ी में केरोसिन डाल के चलाएंगे क्या? विल यू रन अ पेट्रोल व्हीकल यूजिंग केरोसिन और डीजल व्हीकल यूजिंग केरोसिन? केरोसिन डाल के चलाते हैं क्या पेट्रोल गाड़ी को? नहीं चलाते ना. कॉमन सेंस है ना. दैट वाज डिजाइन फॉर पेट्रोल और डीजल. उसमें वही फ्यूल डालो. आपका फ्यूल नेचुरल फूड आप डालते नहीं है, मेडिसिन डाल रहे हैं विच योर बॉडी वाज नॉट डिजाइन. सो इट विल गेट डिस्टर्ब. ये खराब होगा ना. इनफर्टिलिटी तो होगी होगी. आप पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी तो होगी. सो लेट्स गो अहेड, लिटिल अहेड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब मुझे एक बात बताइए, समथिंग हैज गॉन. क्या हो रहा? प्रॉब्लम क्या आ रही है? जस्ट लुक अराउंड. प्रॉब्लम क्या आ रही है? somebody is not able to hold a life, है ना. मिसकैरेज हो रहा है. मिसकैरेज हो रहा है. स्पर्म काउंट इज लेस, एग काउंट इज लेस. फर्टिलिटी का मोटिलिटी नहीं है. फर्टिलिटी का एनवायरमेंट कम हो रहा. हार्मोन इंबैलेंस. तो ये कहां से आ रहा है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? वन फैक्टर इज एक्सटर्नल. एक बाहरी फैक्टर है, बट यू कांट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर. आप तो नहीं कर सकते ना एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल. आप क्या कर सकते हैं? क्या डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इतना खराब होने के बाद भी देयर आर पीपल हु आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलिटी. फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा उनको, बट दे परसेंटेज इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. वो कम होता जा रहा है. बट उनमें क्या है जो आप में नहीं है? उनमें क्या है? पीपल हु डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ऑफ फर्टिलिटी, उनमें क्या है और आप में क्या डिफरेंस है? ये आपको देखना पड़ेगा. सो इसको बहुत बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं. बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनिंग इनसाइड हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. आपके शरीर के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं ना. आर यू कंट्रोलिंग इट? क्या आप कंट्रोल कर रहे हैं? नो. लिवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ऐसे बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे. आप नहीं जानते हो क्या होता, बट एटलीस्ट यू नो दैट यू कांट कंट्रोल योर हार्ट बीट. इतना तो समझते हैं. यू कांट कंट्रोल योर हार्ट फंक्शन, बट यू कैन कंट्रोल हैंड मूवमेंट. हाथ का मूवमेंट आप कंट्रोल कर लेते हैं. सो जस्ट मैं डिजीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ऐसे देखना पड़ेगा आपको. ये T3, T4, TSH, ग्लूकोज लेवल, इससे काम नहीं चलने वाला. So what is a disease? Loss of some functional capability. किसी कार्य प्रणाली का वीक हो जाना डिजीज होता है. Let's understand it in a very simplistic manner. तब सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. हमने सोचा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? Taking some medicine सॉल्यूशन मिलेगा. आज तक तो नहीं मिला. And there are many unknown cause of fertility also. आपको डॉक्टर टेस्ट कर करके थक जाएंगे.
कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा होगा, आप केसेस देख सकते हैं। तो डिजीज का मतलब क्या होता है, इसको पहले डिफाइन करते हैं, इसको सही करते हैं। सो लॉस ऑफ अ कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर की एक क्षमता वीक हो गई, उसको हम डिजीज कहते हैं, है ना, ठीक है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, हाउ टू इंप्रूव एंडोमेट्रियोसिस, वो सब मैं बता रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, ठीक है, वो सब मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो पहले आप डिफाइन तो करो, डिफाइन तो करो, एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, ओवर ग्रोथ, आपके डॉक्टर क्या बोलेंगे, ओवर ग्रोथ हो रहा है। एंडोमेट्रियम क्या, अंदर वूम के अंदर वाले एरिया में ओवर ग्रोथ हो रहा है। सो टू कंट्रोल द ग्रोथ, आपने ग्रोथ को कंट्रोल करने की कैपेसिटी लूज कर दिया। यस, आप ही का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो ग्रोथ को रेगुलेट करने की कैपेसिटी लूज कर दी, यू लॉस्ट द कैपेसिटी टू रेगुलेट ग्रोथ। So if there is a polyp, then that means there is an overgrowth. एक ओवरग्रोथ हो गया ना। अगर अंडर ग्रोथ है, कोई कम हो रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ओवम काउंट कम हो रहा है, so you are not able to produce, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे ठीक से, you have lost the capacity of production, एनाबोलिज्म कह लीजिए उसको, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, नाम बोलने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, ठीक है, आप समझ रही है इस बात को। So there is a loss of capacity in your body, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी आपने लूज कर दी है, क्या उसको ठीक कर सकते हैं, कैन वी करेक्ट इट? ऑफ कोर्स, लेट मी टेल यू, बाय टेकिंग इन मेडिसिन यू कैन करेक्ट इट, यू विल फर्दर डिटोरिएट, आप और खराब कर देंगे, आपको इमीडिएटली थोड़ा सा आराम मिल सकता है, मगर आप अपने शरीर को और खराब कर देंगे इफ यू टेक सम मेडिसिन। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैं सिंपल तरीके से फिर आपको थोड़ा अंदर की चीज बताऊंगा, पहले बाहर की चीज समझ लेते हैं, फिर अंदर की चीज बताऊं। सो यू लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर लेग मसल्स, पांव के मसल्स कमजोर हो गए, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, वीक हो गए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है? जरा बच्चे के दिमाग से सुनिए, जस्ट थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे के दिमाग से सोचें। अगर पांव के मसल्स कमजोर हो गए तो प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खा के मजबूत हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, किडनी खराब हो जाएगी, कैंसर और हो जाएगा, यू विल गेट कैंसर एंड यू लूज वन किडनी इफ यू टेक मोर प्रोटीन। मोर ओवर यू विल गेट इनटू थायराइड, थायराइड में आ जाएंगे, ज्यादा प्रोटीन खाए तो थायराइड हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, मसल्स मजबूत नहीं होंगे। सो यू मस्ट डू समथिंग, दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग, आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम बाहरी चीज है जिसपे आपको थोड़ा कंट्रोल है, इजंट इट? वॉलंटरी कंट्रोल में है ना ये सारी चीजें, आपके मसल्स और बोन्स, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी कंट्रोल में क्या है? आपके हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, सब इनवॉलंटरी कंट्रोल में। तो पहले समझें कि वॉलंटरी जो कंट्रोल के फंक्शंस हैं उसको मजबूत कैसे किया जाता है। सो मसल्स अगर वीक हो गए तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज और सम काइंड ऑफ स्ट्रेस अगर डालेंगे मसल्स पे तो मसल्स मजबूत हो जाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई एक्सरसाइज करेंगे तो योर मसल्स विल बिकम स्ट्रांग। प्रोटीन डजंट मेक मसल स्ट्रांग, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तब मसल स्ट्रांग होते हैं। ये एफर्ट कैसे डालते हैं जरा समझे, वी विल डू एक्सपेरिमेंट विद इट, है आप मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट कीजिए तब आपको पता चलेगा। मसल्स अगर कमजोर हो गए तो आपको एफर्ट लगाते हैं तो मसल स्ट्रांग हो जाए, ऐसा ही होता है। सो ये एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म क्या है शरीर का, व्हाट इज बॉडीज एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा करता है, जरा करें एक्सपेरिमेंट। शुड वी डू एन एक्सपेरिमेंट? तो एक हाथ को ऐसे रखिए, कीप योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, मुट्ठी बांधिए राइट हैंड से, जोर का एफर्ट लगाएंगे, पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड, पुश इट हार्ड, पुश कीजिए हार्ड। हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस एफर्ट और हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस स्ट्रेंथ? ये एफर्ट या ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा कर रहे हैं? देखिए आपका दृष्टि कहां जाती है, आप अभी सही डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। यू विल नॉट लुक इन द राइट डायरेक्शन, यू विल से मसल्स, बोन्स, न्यूरो सिस्टम, कॉन्फिडेंस, माइंड, ये वो सब बोलेंगे। नो 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 नो, यस,
एटलीस्ट somebody has seen in the right direction. किसी ने देखा. दोबारा करते हैं. जहां पे मैं बोल रहा हूं वहां देखना है. जहां पे मैं बोल रहा हूं वहां देखना है. Let's do it again. Let's do it again. Push it as hard as possible. जोर लगा के पुश कीजिए. Push it hard. See, you hold your breath to create this effort. आप सांस रोकते हैं इस एफर्ट को पैदा करने के लिए. आप रोकते हैं सांस को. Without holding your breath, actually, have you pushed anything heavy? किसी भारी चीज को धक्का दिया है? How do you push? By holding your breath. Have you pulled anything? अपने उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए and then pull it. खींचिए. You will hold your breath. To pull, you hold your breath to pull. खींचने के लिए सांस रोकते हैं, है ना? How do you jump? Jump कैसे करते हैं? You hold your breath. Whatever you do throughout the day, दिन में कुछ भी करते हैं आप. Walking, jogging, Zumba, yoga, aerobics, climbing staircases, household work. आप कुछ भी करते हैं. Even from getting up from a chair. For getting up from a chair. chair से उठने में क्या होता है? You held your breath. आप वेरिएबल प्रोपोर्शन में सांसें रोकते हैं. You hold your breath in variable proportion. अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं. You cannot make any effort without holding your breath. So how many people have their right hand strong? कितने लोगों का दायां हाथ strong है? कितने लोगों का right hand strong है? How many people have their right hand strong? And how many people have their left hand strong? How did you do it? आपने ये strong कैसे किया? एक हाथ को? You worked with that hand more. उस हाथ से ज्यादा काम किया आपने? How did you work? काम कैसे किया आपने? जरा उठाइए strong hand को. Lift your strong hand up. Lift your strong hand up. Tense it tight. Tight कीजिए उसको. Tight कीजिए. You hold your breath and direct it towards that hand. सांस रोक के डायरेक्शन मिल जाती है. जब आपने उस हाथ से काम किया, when you worked with that hand, you held your breath in variable proportion and you directed it towards that hand. उस हाथ की तरफ में डायरेक्शन दे दिया. That is how you made one hand strong, one leg strong. ऐसे आपने एक हाथ या एक पांव को स्ट्रॉन्ग किया. Do you know people go to gym and build muscles? लोग जिम जाते हैं, मसल बिल्ड कर लेते हैं. How do they build muscles? कैसे मसल बिल्ड करते हैं? They lift weight. weight उठाते हैं. But how do they lift weight? They hold their breath and they use their muscles. They hold their breath and they use their muscles for lifting weight. ये दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं weight lift करने के लिए. Holding their breath and using the muscles. तो जो muscles use करते हैं, the breath hold goes towards that. Direction of breath hold goes towards that. And those muscles become strong. और वो muscles strong हो जाते हैं. So weight तो बहाना है. Weight is just an excuse to give a direction to your breath hold towards a particular muscle. So ये एक्सटर्नल बात हो गई है. दो चीज मैंने प्रूव किया आपके सामने. I proved two things. The strength creating mechanism of your body is breath hold. Strength creating कह लीजिए, effort making mechanism कह लीजिए. Strength creating mechanism is breath hold and you can give direction to this breath hold. So tell me one thing. एक चीज आप मुझे बताइए. वॉलंटरी कंट्रोल में है ना दौड़ना? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है. If you start running, what do you do? What do you do? You hold your breath in variable proportion. अलग अलग अनुपात में सांस रोक के भागते हैं आप. And that breath hold, the direction of that breath hold, externally तो होता ही है. Internal कहां जाता है? Towards your heart and your heart function increases. वो heart function increase हो जाते हैं. ये आप अनजाने में कर रहे हैं. So voluntary और involuntary के बीच में एक कड़ी है. There is a medium which controls your voluntary function and involuntary function. You can use that medium to direct towards a particular organ. Direction, for giving direction to a particular organ, उस medium को इस्तेमाल कर सकें. That is breath hold. So can you hold your breath and make your ovary strong or gonad strong? Give it a direction towards your ovary, towards your gonads, towards your whatever aspect, metabolism, towards your hormonal balance, towards pancreas, towards liver, towards heart, towards neuro system. आप डायरेक्शन दे सकते हैं उसकी तरफ में and make that aspect strong. You don't know how, but you can do it. आप ये कर सकते हैं. आपको मालूम नहीं है कैसे करना है. So one thing I started with, what is disease? Disease का मतलब one function has become weak inside you.
आपके शरीर के अंदर एक फंक्शन कमजोर हो गया, दैट इज डिजीज. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, क्या पैनक्रियाटिक फंक्शन गॉन डाउन, पैनक्रियाज वीक हो गए. इनफर्टिलिटी क्या है, हार्मोन लेवल जो है बैलेंस में नहीं है, और योर ओवरीज हैज बिकम वीक, और एंडोमेट्रियोसिस हैज हैपेंड, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म वीक हो गया एस्पेक्ट. कंट्रोलिंग अ ग्रोथ, किसी अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करने का एस्पेक्ट वीक हो गया. सो व्हाट इज डिजीज, सम फंक्शन गॉन वीक इनसाइड यू, कोई फंक्शन वीक हो गया आपके अंदर. व्हाट इज सोल्यूशन, what is the solution? You hold your breath and strengthen that aspect within you, give a direction towards that. This is कुंभक therapy. ये कुंभक therapy है. आपको मालूम है all the talents in the youngsters, आप पता प्रेगनेंसी में जाएंगे, when you if you go towards pregnancy, before conception you can actually create the most appropriate environment to invite the most appropriate life in you. Before pregnancy, अगर pregnancy को आप plan करें, तो you can create the strength of inviting the most talented, most appropriate and the best life possible. आप invite कर सकते हैं. After you become pregnant, अगर lady pregnant हो गई है, then it is the responsibility of the female to create the right environment within her body and around her body. वो हम करते हैं गर्भ संस्कारा प्रोग्राम में. After conception, your child doesn't get into chronic disease. आपके बच्चे को बीमारियां कम हो, आपका बच्चा talented हो, you can ensure that before pregnancy, not after. एक बार आपने डिलीवर कर दिया तो अब कुछ नहीं कर सकते, you can't do anything about it. तो अगर आज बच्चों में बीमारियां हो रही हैं, if the child population or the population of newborn and kids, they are getting into different problems. 4 साल के बच्चे, 4-year-old kid taking insulin to survive. Teenagers are getting into thyroid issue, menstrual difficulty, all the chronic disease, heart issues, cancer. So if they are getting these disease, who is responsible? किसकी जिम्मेदारी है? We may not be wanting to take this responsibility. हम शायद ये responsibility नहीं लेना चाह रहे, मगर हम we are responsible because we are not planning our conception. अगर आप प्लान नहीं करेंगे और आपके बच्चे आगे चल के प्रॉब्लम में आते हैं, आप आगे चल के प्रॉब्लम में आते हैं, you get into postpartum disease, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट यू हैव नॉट टेकन चार्ज, आपने अपना चार्ज नहीं लिया. सो इट इज इंपॉर्टेंट वॉट एवर एल्स यू डू. देखिए, आप दुनिया को बदल नहीं सकते, यू कांट चेंज द होल वर्ल्ड इमीडिएटली, यू कांट चेंज द एनवायरमेंट इमीडिएटली. व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ वेयर डिस्पाइट दिस एनवायरमेंट यू रिमेन फाइन. आप यही कर सकते हैं, और कोई चांस नहीं है. By taking in a medicine, you can't make yourself strong. Rather, you'll make yourself disease. दवाई खा के सारी पॉपुलेशन डिजीज में आ ही रही है. आप आज नहीं माने, आज के 10 साल बाद सबको मानना पड़ेगा इस बात को. So let's take this responsibility now. आज हमें जिम्मेदारी लेनी है to strengthen your system. तो हम क्या करते हैं गर्भाधान में? We do certain things to create a strength of your system. हम ये देखते हैं, first of all, we do a diagnosis. आपका डायग्नोसिस करते हैं. कुंभक थेरेपी इज नॉट डन जस्ट लाइक दैट. सो वी डू अ डायग्नोसिस ऑफ यू. आपका डायग्नोसिस करते हैं कि विच फैक्टर्स हैज बिकम वीक इन यू. कौन से फैक्टर्स वीक हो गए जिसकी वजह से यू आर गेटिंग इनटू फर्टिलिटी इशू, जिससे एक काउंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मोटिलिटी नहीं हो रहा, स्पर्म मोटिलिटी नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस हो रही है, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी हो रही है, लिकोरिया हो रहा है ना. एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. स्पर्म का जो क्वालिटी है वो खराब है. सो वीर्य शुद्धि, रज शुद्धि, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट है. सो वी फर्स्ट डायग्नोज यू फॉर व्हाट फैक्टर्स हैव बिकम वीक इनसाइड यू. देन वी डिजाइन अ कुंभक थेरेपी. आपके लिए कुंभक थेरेपी डिजाइन करके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को बताया जाता है. वीर शुद्धि, रज शुद्धि, भूत शुद्धि, ये तो उसका पार्ट है ही है.
इस प्रोग्राम का पार्ट है. We also tell you what and how to create a lifestyle of health. Despite all these problems, you remain protected from further deterioration of your body aspect. यानी आगे जो बीमारी जो होने वाली है उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप. How you can invite the most powerful life within you. आप अपने आप को कैसे एलिजिबल बनाएं. How to create the eligibility of inviting the most powerful life. Or what direction you take to nurture that life and create a population of highly capable humans. ठीक है, आगे चल के ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपके आगे की जनरेशन ज्यादा केपेबल हो. So you should start from now. First, take care of yourself. So we diagnose you, we design a Kumbhak therapy. We teach you so many different ways to create a lifestyle of health, and we also ensure that you don't get into problems later on in your life. आगे चल के क्रॉनिक डिजीज में ना आए, उसकी पॉसिबिलिटी आप कैसे कम कर सकते हैं अपने अंदर. So this is whole Garbhadhan program. It is not just for Garbhadharana. It is for changing your life completely. So अभी आगे चल के we'll take all the questions and answers. अभी वितिका आपको आगे बताएंगे कि कैसे करते हैं. How do we go about doing this program? कैसे किया जाता है? Thank you so much, Swamiji. So we have understood a lot of things, a lot of dimension of how life works and how Kumbhak works. Okay. So now who all are ready to know more about the program, how to join, what to do, when to start? We are getting so many how and what's in the chat. So allow me to share a little, to take more of your screen time, just a little more, not much. Thank you again, Rajveer Puji. So now we know what we know, that Garbhadhan, the process is not a single day workshop. It is the way you live. Number two, it cannot be an imaginary theory of manifestation or something else. No, it is something much more than that. Number three, it cannot be, and I request, it should not be an artificial process, because it is alive. It is so more than you. It is just pure life in itself. Number three, it cannot be a hit and trial method. See, we have came across so many people who have suffered multiple IVF failures or multiple procedures like that. And sometimes it is so strange to know that people are getting in their report undiagnosable infertility. I mean, how can this word be created for a diagnosis form? Isn't it? So the external treatment, whatever you take, leave you in so much weakened body, depressed mind, and empty pockets. Okay, so this creating a life mechanism should not be a hit and trial method, and it cannot be a same experience for everybody. If a lady is conceiving twice, so both the pregnancies will have totally different experience for her, because she is totally different in each of the pregnancies. Now, what are the steps of Garbhadhan program? Steps are Virya and Rajashuddhi. As Swamiji told us, it is clarifying purification of you as your body and as a mind and as energy. Number two, Bhuta Shuddhi. Number three, once we have cleared it, once we have purified it, we need to increase your power, increase your strength, the Tejas, Ojas, and Varchas Vardhanam. And number four is Samarpan. So these would be the 4 steps in our Garbhadhan program. And the program will have how it is implemented. That program duration is of 3 months. Okay. The total number of sessions are 8, which includes 3 main Kumbhak sessions and
3 Purnima sessions, because we know that conceiving a life cannot be just a physical aspect. It has to be related to something of you, your emotions, your physicality, your spirituality, and many more things. So we take care of that in our 3 live Purnima sessions and 2 follow-up sessions and more follow-up sessions, more practice correction sessions as and when needed for each batch. Now, when the program is starting, okay, I understand everything. Now I am very keen to take this responsibility, to take this flight, which will take me to the dream life that I am always thinking about. So program start हो रहा है 5th of April, that is Monday. Monday को सुबह 7 to 8:30. We do understand that we have working people with us. So we have kept this time morning 7 to 8:30 a.m. so that you can finish the session and go back to your work without no need to take any holiday or need to leave early, nothing like that. Okay. So first session will be on 5th of April, that is Monday. Second session would be on next Monday, that is 12th of April. Same time, 7 to 8:30 a.m. Third session would be on 19th of April. Again on Monday, that is 3 consecutive Mondays at morning 7 to 8:30. And then 3 Purnima sessions, obviously on Purnimas, and follow-up sessions as per your convenience. We will be asking in the group, and as per availability of all participants, we will share the practice sessions and follow-up sessions. So what is the package all about? It is not just making you capable enough to conceive a baby, but it also is complete health package for you to become more efficient in every aspect you can think about. It will have customized Kumbhak for each and every individual. Course material, that is recorded video and well-written instructions, will be shared with each participant. There will be spiritual sessions. There will be availability of Rasayan formulations, which are very rare combinations and are made available only to our participants. Also, there is premium support of the mentors, me and Neha, जिससे आपकी बात हुई है भाई, जाने पहचाने लोगों से ही तो सपोर्ट लेंगे ना. So we are there in each WhatsApp group to make you comfortable to solve each and every concern of yours. Also, you will be given diet perspective, you will be given chants, you will be given lifestyle suggestions, and there is always such an enthusiasm when we learn in a group. So the program starts on 5th April. What is the fee? The thing starts with the fee. So the package only for lady. If the lady registers as a single participant, the fees is 6,000. But if you pay by 12 noon tomorrow, the price will be 5,000 rupees. Similarly, the package for the couple, actually, ideally, you should take the package for the couple because contribution of both are important in conceiving a life. So the package for couple is 9,000 rupees. But if you pay by 12 noon tomorrow, the price would be 7,000 rupees. This is offer price for early birds participants. Okay. So here you have the opportunity to ask all your concerns, all your queries, and get your seat registered by 12 noon tomorrow. The payment link and the UPI ID is 918527957776 @SCB. This you can pay by UPI. That means you can directly transfer from the bank. You can pay by Paytm using this UPI or any other supportive app, or you can GPay us, Google Pay us at the same number 8527957776. So we have 4-tier support mechanism. Since we know that we are providing this online therapy, so we extend our support to maximum dimensions possible. That is, there will be program mentors in each
class and each WhatsApp group. WhatsApp support is always there. Phone call, of course, we are available, and we are even ready for video discussions for individual participants if needed. Class experience is like online training. You don't have to go anywhere in a hot weather or in a traffic condition. You can attend the session from comfort of your home. You are guided within the session. We will make sure that you are practicing it correctly. It is as per, you can watch the recording of the session as per your convenient time and at any number of times you want to watch it. Also, we will ensure that you are making it, you are doing it correctly because we will be making the notes for you. We won't ask you to make any notes. We won't expect you to remember anything. Let us do this work for you. You simply attend the session, learn the method, get the ready-made course material and practice. That is it. Just make yourself available. Everything else will be taken care of. Again, here are the payment options. This is for the complete health package of you, of your partner, of the of inviting the divine life, and of making sure that you are able to hold it and deliver it successfully, and you are able to enjoy the journey too. It won't be another disease-oriented problem period for you. No, you need to enjoy the journey. मम्मा हैप्पी होगी तभी तो बेबी हैप्पी होगा ना. So again the program starts on 5th April 2021. Let this date be a milestone for you so that you can start your journey towards a guided pregnancy. Now the package has basic session, customization session, the food perspective, follow-up session, recorded videos of Hat Kumbhak, food aspect, lifestyle, special sessions on Purnima, and premium support. If you need anything else, please let us know. We will make sure that you get whatever you ask for. And these are our contact number 93103 26330 and 85953 03475. You can write to us in the WhatsApp group or email us at medinicareinfo@gmail.com, and our website is medinicare.com. Now, here I'll stop the share and I would like to open the session for question answers. Please unmute yourself and ask your question. Please unmute yourself and you can interact directly with our Kumbhak Yogi, Swami Raj Vibhuji. Will you suggest only online or we should reach any location? See, we are reaching to you. Why you need to move? Don't make complexity in your life. Let it be simple and convenient. हम आते हैं आपके पास. Excuse me, ma'am. Yeah, please go ahead. Yeah, just want to know आपके जो सेशंस रहेंगे वो पर्सन टू पर्सन उसकी बॉडी पे अफेक्ट करने वाले होंगे या जनरलाइज सेशंस होंगे? नहीं मैम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है. Obviously, we do understand that. इसीलिए जो प्राण शक्ति डायग्नोसिस की बात हुई है वो हम आपके टेंडेंसीज और आपके रिस्पॉन्सेस को समझेंगे. आपकी एक सेल्फी जैसी फोटोग्राफ मंगाएंगे और आपका हर पार्टिसिपेंट का इंडिविजुअल कस्टमाइज मॉड्यूल प्लान होगा. आपको ग्रुप सेशंस में बेसिक जनरल मॉड्यूल सिखाया जाएगा, पर ईच इंडिविजुअल का फाइन ट्यूनिंग होगी और उस कस्टमाइज उस जेनेटिक मॉड्यूल को कस्टमाइज किया जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट, आपके सिस्टम के हिसाब से, जिससे वो आपकी प्रॉब्लम्स की टेक केयर करे. इट कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल. बट बिना मिले कैसे पॉसिबल होगा ये? ये मैं बताता हूँ आपको मिलके भी कौन सा पॉसिबल हो जाता है. आज मेडिकल डायग्नोसिस क्या कर पा रहे हैं, वो सोल्यूशन तो नहीं दे पा रहे. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे आपको डायग्नोस करेंगे, इसको आप समझ लीजिए.
आपका ब्रेथ पैटर्न, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को कहेंगे, और आपका एक ब्रेथ पैटर्न हम मंगाते हैं। जो हम डायग्नोसिस फॉर्म भरवाते हैं, ये अपने दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस फॉर्म है। ऐसा कोई डायग्नोसिस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये डायग्नोसिस आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आपके फिजिकल बॉडी के बारे में, उसकी क्या कैपेसिटी है, आपके मेंटल बॉडी के बारे में, आपके एनर्जी बॉडी के बारे में, आपके बारे में, ये सारा कुछ हम इस डायग्नोसिस से आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आपके फ्यूचर में क्या क्या बीमारियां आने वाली है वो भी बता सकते हैं। ब्रेथ पैटर्न होगा, आपका इमोशनल पैटर्न को हम जज करते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। आपका ब्रेथ पैटर्न देखा जाएगा, इमोशनल पैटर्न देखा जाएगा, मेंटल पैटर्न देखा जाता है। उसमें हम केवल क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल, और आप उसे आंसर करते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाता है। और जैसा वितिका ने बताया कि आपकी एक सेल्फी मंगाई जाती है, तो वो आपके बारे में सब कुछ हमें बता देती है। उसके बेसिस पे मैं कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ ईच पार्टिसिपेंट के ऊपर पे, सामने जाके नहीं, पीछे से जो आप फॉर्म भरेंगे उसके ऊपर, और आपको आपके लिए कस्टमाइज्ड मॉड्यूल तैयार किया जाता है। उसमें हम आपको ये भी बताते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहां से शुरू हो रही है आपके अंदर। वो सारा कुछ आपके डायग्नोसिस फॉर्म में सब कुछ हम आपको देते हैं, बताते हैं। और डायग्नोसिस करने के बाद में कस्टमाइजेशन जो किया जाता है, थर्ड जो आपका सेशन होगा वो कस्टमाइजेशन सेशन होता है। उसमें हर एक के मॉड्यूल को कस्टमाइज किया जाता है। यहां तक ही नहीं, ये 3 महीने का जो प्रोग्राम है, ये केवल 3 महीने तक नहीं रुकता है। ये दुनिया में अपने तरीके का इकलौता प्रोग्राम है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। हमारा सपोर्ट पूरी जिंदगी आपके साथ में होगा। ये 3 महीना तो सिर्फ बहाना है आपको एक लाइन पे लाने का। ओके, तो कुछ मेडिसिन भी आप सजेस्ट करेंगे क्या साथ में? हम जैसे बताया, रस रसायन, ये एक रस विद्या जो कि बीच में इसकी कड़ी टूट गई थी। ये हमेशा परंपराओं में ही आया हुआ है, यौगिक परंपरा में आया हुआ है। ये इसे आज के टाइम पे क्योंकि इतनी जरूरत है लोगों को, इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये बहुत रेयर फॉर्मुलेशंस हैं जो परंपराओं से आए हैं, ये बाहर अवेलेबल नहीं है। ये हम अपने पार्टिसिपेंट्स की कंडीशन को देखते हैं। जैसे किसी को पीसीओडी है और पीसीओडी ठीक नहीं होता, बट हमारे पास रसायन ऐसे हैं जिससे पीसीओडी ठीक हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाता है। आपके जो प्रॉब्लम लेवल के लिए भी है कुछ? हाँ, एएमएच लेवल के लिए भी कुछ है? क्योंकि एएमएच लेवल के लिए भी है। हाँ बिल्कुल है, वो हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन करें, क्योंकि हमारी डायग्नोसिस फॉर्म में एक ऑप्शन होता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप बताते हैं डिटेल में। जो भी एक ऑप्शन होता है जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। पहली चीज जो आपको करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कुंभक जो आपके लिए डिजाइन किया जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो करना है। एडिशनल जो सपोर्ट होगा वो रसायनों से होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रसायन देंगे। वैसे ज्यादातर चीजें कुंभक से ही ठीक हो सकती है, रसायन एक सपोर्टिव होती है, आप चाहें तो ले लें, चाहे तो वैसे भी ठीक हो सकता है। एज भी मैटर करता है? एज ऑफ कोर्स, जहां फर्टिलिटी एस्पेक्ट में एज मैटर करता है, मगर अगर फर्टिलिटी पीरियड में है कोई, तो हम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बना देंगे फर्टिलिटी की, ये जान लीजिए। ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी पीरियड? मेनोपॉज नहीं आया हो, फर्टिलिटी पीरियड तो वही होता है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक वो फर्टिलिटी पीरियड होता है। मैं समझ रही थी, बट मैंने सोचा एक बार क्लियर करना बेटर है। बिल्कुल, क्लैरिटी हर चीज की होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारा लॉजिक सेटिस्फाई होना चाहिए जिससे हम निश्चित होकर कर सकें। श्वेता जी, यू सेड वी वांट to conceive naturally, so avoided IUI and IVF. I must say, when you have taken this intelligent decision, then you must go for Kumbhak therapy, because these are totally 200% natural triggers which your body understands, and it will support you in return to conceive more efficiently and naturally. So now my age is 45, and after the age of 40, conceived 2 times. But it was aborted in 6 weeks. Now possibility of pregnancy at this age is, all reports are okay. नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एज 45 है, 40 के बाद 2 बार कंसीव किया, but could not hold the pregnancy. All reports are normal. Is there any chance? Of course there is a chance. मैंने बताया, if you have not gone to that
आप अगर फर्टिलिटी पीरियड में हैं तो वी कैन इंक्रीज. होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देर इज सम वीक फैक्टर. और व्हाट इज कुंभक? कुंभक इज होल्ड. कुंभक बेसिकली मींस होल्ड. यही तो मैं बता रहा हूं आपको. ये क्या है? आप सांस होल्ड करके, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्रिएशन. लाइफ के क्रिएशन का एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है कुंभक. व्हाट वी आर टीचिंग इज नॉट योगा, इट इज नॉट प्राणायाम. इट हैज अ डायग्नोसिस इन्वॉल्व. उसके हिसाब से हम कुंभक को डिजाइन करते हैं. इट इज टुवर्ड्स लाइफ, नॉट टुवर्ड्स डिसॉल्विंग लाइफ. तो होल्ड आप अच्छा कैसे कर पाए? कुंभक के जरिए. देयर इज नो अदर वे. कोई और तरीका नहीं. इफ यू आर नॉट गॉन टू दैट स्टेट ऑफ मेनोपॉज, तो अभी बहुत चांस है. आप इसको प्लीज कंसिडर कीजिए. There are many cases, many people who have reported to us that they had multiple IVF failures. Okay, and that means they are not able to hold the conceived life. Also, there are people who have successfully conceived naturally, but now the multiple miscarriages happened. So doctors are suggesting IVF, but shouldn't they understand कि कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने में प्रॉब्लम है. सो शुड दे गो फॉर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट? External treatment is your choice, but you will always disturb the process of life by external treatment. आप बहुत सिंपल तरीके से सोचें कि who knows how this life is placed. इस दुनिया में किसी को मालूम है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे खत्म होता है? किसी को नहीं मालूम. बट somehow the whole doctor fraternity, उन्होंने ऐसा उनको लगता है कि दे हैव द राइट टू इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ. उनके पास में राइट है प्रोसेस ऑफ लाइफ में इंटरवेंशन के लिए, और उस वजह से ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है. इन टोटालिटी ह्यूमन लाइफ कमजोर होती जा रही है. सो आईवीएफ क्या सही है क्या गलत है, दैट इज योर चॉइस. फिर भी मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी है. बट एक चीज जरूर कीजिए, इवन आईवीएफ भी किया जाएगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो आपके वूम में ही उसको इंप्लांट करेंगे. तो विल यू बी एबल टू होल्ड दैट? क्या आईवीएफ भी सक्सेसफुल तभी होगा ना इफ योर सिस्टम इज पावरफुल, इफ योर सिस्टम इज बेटर. तो आप आईवीएफ के चांस भी कुंभक से ही बढ़ाएंगे. आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप योर आईवीएफ एंड अदर थिंग्स. अभी मैं नहीं बोल रहा हूं. आफ्टर सम टाइम आई विल से दैट. मैं बोलूंगा 5 साल के बाद में. ठीक है, जो हमारे साथ में होंगे वो देखेंगे, उस समय डॉक्टर्स भी बोल रहे होंगे. तो बट अभी नहीं बोलूंगा. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू से इज क्रिएट अ कंडीशन विद इन योर बॉडी. आप अपने शरीर में ऐसी कंडीशन क्रिएट करें कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आईवीएफ भी बढ़ा दें, नेचुरल प्रेगनेंसी भी बढ़ा दें, उसकी प्रोबेबिलिटी. मे बी आफ्टर कंसेप्शन वो टाइम पीरियड को और अच्छा कर दें. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं उसको तो कम करना चाहेंगे ना आप. हाउ विल यू डू दैट? बाय टेकिंग मेडिसिन? नो. by empowering your system. पोस्टपार्टम डिजीज को कम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? फॉरगेट अबाउट प्रेगनेंसी. आप लाइफ में प्रॉब्लम्स, आने वाली प्रॉब्लम्स को तो हैंडल करना चाहेंगे ना. डोंट यू वांट टू प्रिवेंट अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन विथ एज, द कॉम्प्लिकेशन विच कम्स इन योर लाइफ. आप अपने आगे की एज को अच्छा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कीप कुंभक विथ यू. रेस्ट ऑफ इज योर चॉइस. बाकी सब आपकी चॉइस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू डिसाइड. बट ये एक ऐसी चीज है, empowering yourself is something that each and everyone should do, must do. ये करना चाहिए. बाकी आपके ऊपर, whatever you decide, that is completely up to you. You are free to decide that. Is erectile dysfunction 100% curable? Anything. Somebody is asking. Actually, yes, actually मुझे भी एक क्वेश्चन पूछनी थी. मेरा एक्चुअली 2 बार एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ है और राइट ट्यूब में, और मेरा राइट ट्यूब भी रिमूव कर दिया क्योंकि वो सेम ही में हो गया था, राइट ट्यूब में ही. तो मेरा ये है कि अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप आईवीएफ के लिए जाए, एंड आई एम प्री डायबिटिक. तो मुझे थोड़ा पूछना था कि क्या ये सेफ होगा, मतलब कि मुझे नेक्स्ट लेफ्ट ट्यूब में भी ना हो जाए कहीं ऐसा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी राइट ट्यूब में भी हो गया और रिमूव भी हो चुका है ट्यूब. हाँ,
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले इसको समझना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, एक और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं ना, तो आपके वूम में उसको इम्प्लांट हो जाना चाहिए, वहां पे उसको ग्रो करना चाहिए। वो वूम में इम्प्लांट नहीं होता, वूम के बाहर इम्प्लांट होता है। जो एक्चुअल एरिया है जहां पे इम्प्लांट होना चाहिए उसके अलावा दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम जो है मोटिलिटी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो होती है मोटिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है मे बी, और वो मूवमेंट की प्रॉब्लम उस इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, उस एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है, जो वूम एनवायरमेंट है उसका प्रॉब्लम है। तो ये क्यों हो सकता है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, देयर कैन बी अ कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो हो सकता है जैसे आपने बताया प्री डायबिटिक है, हालांकि प्री डायबिटिक से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट इफ देयर इज एन हार्मोनल एनवायरमेंट और उसके इंबैलेंस का एनवायरमेंट है तो उस वजह से हो सकता है। ओवर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का एनवायरमेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू, इससे पहले से मैं बोल रहा हूँ, एक टॉपिक तो आपने नाम बता दिया, किसी डॉक्टर ने नाम रख दिया, किसी साइंटिस्ट ने नाम रख दिया, उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, आईवीएफ ही दे रहे हैं, बाहर फर्टिलाइज करके इंप्लांट कर देते हैं। बट विल यू बी एबल टू होल्ड दैट आल्सो? व्हाट इज द गारंटी दैट बाहर भी अगर इंप्लांट करके आपके अंदर डालते हैं तो यू विल बी एबल टू होल्ड? तो वो एनवायरमेंट तो आपको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। आईवीएफ के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, यू टेक अ कॉल, उसके लिए बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या ये सॉल्व हो सकता है? ये 100% सॉल्व हो सकता है। इफ यू वर्क अपॉन दिस, एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से जो इम्बैलेंसेस आ रहे हैं आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। मेडिसिन कांट डू इट, मेडिसिन नहीं कर सकते हैं आप। आईवीएफ बाहर फर्टिलाइज करके, फर्टिलाइज तो हो ही रहा है एनीवे, ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, एक टॉपिक में फर्टिलाइज तो हो ही रहा है। वो लोग करेंगे क्या, वो लोग बाहर फर्टिलाइज कर देंगे और अंदर इंप्लांट कर देंगे। वो इंप्लांट करने की तो प्रॉब्लम है, वो सही जगह पे नहीं है, वो सही जगह पे इंप्लांट करने की कोशिश करेंगे, बट आपका वूम होल्ड कर पाएगा क्या वहां पे उसको? फिर दोबारा से ऐसा जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो ही, तो उसके सक्सेस, उसको भी अगर सक्सेसफुल आपको ज्यादा बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ लिटिल बैलेंस इन द सिस्टम। आपके शरीर में इंबैलेंस जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डायग्नोज यू फॉर दैट, कि आपके वीक फैक्टर्स क्या हैं, वो डायग्नोज करना पड़ेगा, एंड देन विल स्ट्रेंथन दोस फैक्टर्स। अगर वो स्ट्रेंथन करेंगे तो आपको हार्मोनल इंबैलेंस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, इवन योर प्री डायबिटिक कंडीशन भी सॉल्व हो जाएगी। हम तो डायबिटीज वैसे ही सॉल्व करते हैं, विदाउट सर मेडिसिन यू कैन कम आउट ऑफ योर डायबिटीज। सो ये थेरेपी है, इसीलिए डायग्नोसिस, creating a strength in your system. Over that, if you want to go for IVF, that is your choice. But IVF में भी मैंने बता दिया बाहर फर्टिलाइज करके अंदर इम्प्लांट ही करेंगे, तो increase your probability of holding the life, holding the zygote. और सर ये प्री डायबिटिक भी ठीक हो जाता है? बिल्कुल 100%। थायराइड कंडीशन अगर आपकी है वो ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, एनी इम्बैलेंसेस which is there in your system because of which the factor, those things have hampered your conception of fertility aspect. आपके imbalances ही तो खराब करते हैं ना fertility aspects को, वो सॉल्व होंगे 100%, वो सॉल्व होंगे। सर कितना टाइम लगता है ठीक होने में? अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द imbalances एंड द कैपेबिलिटी टू रिवर्स द कंडीशन। आप कितना एफर्ट डालते हैं, एक तो है कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, बट द अदर पार्ट इज यू वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। वो आप कितना कर पा रहे हैं, कितना कमिटमेंट है, आपके सिस्टम में कितना वीकनेस है, या फिर किस तरीके से स्क्यू हो गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया है, टेंडेंसीज ले ली है आपके सिस्टम ने। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, कुछ लोगों को महीने भर में ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा, कुछ लोगों को 6 महीने लगेंगे, अगर मुझे बताइए साल भर भी लगेंगे, एंड यू कम आउट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो और तो कोई तरीका भी नहीं है ना। सीधा यू डोंट हैव एनी चॉइस, ओनली थिंग इज यू डोंट नो एट दिस मोमेंट, आप रियलाइज नहीं करवा रहे इस बात को। Yeah, if periods are late by 10 days, what could be the reason? Ma'am, hormonal imbalance, that is the reason. Radhibhuji, can erectile dysfunction be cured completely? हाँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को 100% क्योर कर सकते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स बट द वेरी रूट कॉज, क्यों वो शुरुआत हुई है, क्या फैक्टर्स कमजोर हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो सजेस्ट इफ यू वांट इट फास्टर, so kumbhak as well as an external impetus for erectile dysfunction which helps hugely. वो आपके दवाइयों जैसा नहीं है, वो it goes with the system। जो रस विद्या है
जैसे लाइफ क्रिएट होती है उसी का एक प्रोसेस है, बट यूजिंग एन एक्सटर्नल इम्पेटस, दैट लाइफ क्रिएटिंग प्रोसेस हैजंट, वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ क्रिएटिंग एस्पेक्ट्स। तो ये प्रो लाइफ है, ये अगेंस्ट लाइफ नहीं है दवाइयों की तरह। इट कैन बी कंप्लीटली हैंडल, इजीली बी हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल होता है। वी नीड टू सी इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। Yes, AMH level can be handled using Kumbhak therapy. What is the success rate? The success rate is 100%. The only thing is we need your participation also. That is 100%. When some people are asking for some testimonial, can I share something with you? Just a 1.5 minute testimonial. Hi friends, I am C.A. Rupesh Sharma. My wife Priya Sharma, C.A. Priya Sharma, has a school for this startup course today, which is conducted by Rajasthan. This course is very, very useful and helpful to her, especially asanas such as Kumbhaka and the guidance which was provided by Rajasthan and constant support which was provided to her by the create help to her. And she has just delivered a baby boy on the 2nd of February. And my wife, both are doing fine and they are very happy. I'm sure we will get to talk to my wife. She is all praises about this course, and I highly recommend to that we today's life morning. On one hand, we are moving forward when it comes to technology and other things. When it comes to really realizing our roots and the things which are nannies and daddies, we are somewhere. I think we are tagging this thing. This course was that sort of a virus. So a very recommendable course. Please go ahead and the benefit of this course. Very good thing, very good practice. Thank you. Thank you. That was the testimonial, one of the testimonial. Can we reduce high number of can we reduce high number of thyroid antibodies with this program? I am getting recurrent miscarriages due to autoimmune problems. You are muted. Antibodies, why antibodies develop in your body? Antibodies क्या हैं कि when the body gets into risk, antibodies are basically a risk mitigation aspect of your body. So if your body is getting into risk, then antibodies will develop more. So thyroid antibodies आ रहे हैं क्योंकि your body is getting into metabolic risk. वो risk में क्यों आ रहा है? Why it is? See, अभी भी आपके diagnosis में क्या है? डॉक्टर के पास में जाएंगे कि वो कहेंगे AMH लेवल कम है, ये कम है, वो कम है, बट दे डोंट गिव सोल्यूशन। उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑब्जर्वेट करके, ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंटेलिजेंस। एक बेवकूफ इंसान भी ऑब्जर्व कर सकता है ना, उसको मशीन दे दो ऑब्जर्व कर लेगा वो। तो इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग टू जस्ट ऑब्जर्व बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन। AMH लेवल को बढ़ाना कैसे, मालूम ही नहीं। आपका AMH लेवल कम है, कोई भी बोल सकता है। आपको भी मशीन दे दिया जाए, बोल दिया जाए ये देख लो, ये टेस्ट करके ये होता है, तो आप भी जान जाओगे AMH लेवल कम है, ज्यादा है। बट वेयर इज द सोल्यूशन? तो थायराइड एंटीबॉडीज ज्यादा है, और ठीक है एंटीबॉडीज ब्लड में टेस्ट करके बता दिया, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? वेयर इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको सोल्यूशन क्या है। एंटीबॉडीज रिस्क की वजह से एंटीबॉडीज आ रहे हैं। रिस्क मिटिगेट तरीका है आपके। रिस्क क्या है वो कौन बताएगा? वी विल टेल यू व्हेन वी विल डायग्नोज यू। लेकिन अगर आप थायराइड एंटीबॉडी को ट्रीट करना चाहते हैं तो कम टू द थायराइड प्रोग्राम। बट इफ यू वांट टू डू इट फॉर योर फर्टिलिटी, देन कम टू दिस प्रोग्राम।
So we will diagnose you why your body is getting into risk, which factors have become weak, and what kind of risk your body is getting into. And then we'll design a Kumbhak method to treat that aspect. Anyway, आपके antibodies कम हो जाएंगे, and your fertility probability will increase. वो होगा ही होगा, because you are working. See, we are not giving you something from outside कि उसकी probability कितनी है. 100% probability है. आप हाथ से काम करके आपने हाथ strong कर लिया ना, 100% probability थी, आपने वही काम किया है. So it is just working upon your system, and which works, But the only question is how much you can actually do that, how much you are committed towards it. हेलो सर. Anyway, अगर कुछ और ज्यादा रिस्क हुआ तो we will suggest some रसायना and external impetus also along with कुंभक. हेलो सर. हाँ जी. हाँ जी सर, मुझे ओवरियन रिजर्व सिंड्रोम है, रेजिस्टेंस सिंड्रोम. हाँ जी सर, मेरे को फर्स्ट. हेलो. ओवरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम क्या है? ओवरियन सर, डॉक्टर्स ने क्योंकि एक्चुअली जो इंजेक्शंस मुझे दिए जाते हैं वो मुझे काम नहीं करते, जो HMG वो सब. पहले मेरे को 2017 में, हाँ जी यस सर, 2017 में वो मेरे को वर्क किया. आफ्टर दैट मेरे को केमिकल प्रेगनेंसी के बाद अभी कुछ भी इंजेक्शंस भी मतलब कि काम नहीं करता, कुछ नहीं करता. तो दे आर टेलिंग कि मुझे अभी एग डोनेशन के लिए, सो व्हिच आई एम नॉट रेडी फॉर दैट सर. सो इसमें मेरे को पॉसिबिलिटीज है ठीक होने के लिए? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. कभी कभी क्या होता है, बॉडी भी ऐसा, बॉडी के साथ छेड़छाड़ ज्यादा करेंगे ना तो इट ब्लॉक्स इटसेल्फ, कोई भी चीज काम नहीं करती है. ऐसे देयर आर इन अदर प्रोग्राम्स वी हैव केसेस वेयर मेडिसिन्स वर नॉट वर्किंग अपॉन पीपल, दे स्टार्टेड कुंभक, उनकी दवाइयां भी काम करने लग गई उनके ऊपर. वी हैव मेनी केसेस लाइक दैट. सो आई एम नॉट सेइंग कि दवाइयां काम करने लग जाए. यू कैन करेक्ट योर सिस्टम बाय योरसेल्फ. आप अपने शरीर को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं. तो प्लीज देखिए, चांस लीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच एवरीवन शुड एक्चुअली डू. इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सिस्टम विल ओनली हैपन इफ यू वर्क अपॉन दिस ह्यूमन बॉडी. अपने शरीर पे काम करेंगे तभी ये कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनहांस होगा. आपके लिए नहीं, बहुत और के लिए. आप जब डिलीवर करेंगे बेबी को तो उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? अपनी कैपेसिटी बढ़ा के. देयर इज नो अदर वे. यस सर, मींस अ लॉट सर. थैंक यू सर. Yeah, Pranab Kumar ji, you can ask your question, please. इसका उम्र है 33. हेलो. मेरा Yeah. वॉइस का उम्र 33. उसका ब्लॉक है, दो ट्यूब ब्लॉक है, और जो fallopian ट्यूब है वो अनहेल्दी है एंड मोटा है. डॉक्टर ने आईवीएफ सजेस्ट किया था. समझ गया. fallopian ब्लॉकेज है. तो एक बार आपकी एंड ओवरियन रिजर्व भी बहुत कम है. मैं समझ गया, मैं आपको बता देता हूँ. fallopian ट्यूब ब्लॉक है क्योंकि ओवर ग्रोथ की वजह से ब्लॉक होता है. देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ सिस्ट और ओवर ग्रोथ, कोई ना कोई ओवर ग्रोथ है जिसकी वजह से ब्लॉक होता है. ओवरीज में भी अगर इस तरीके से सिस्ट हो तो ओवरी में एग का रिजर्व जो होता है वो कम होता है, अवेलेबिलिटी कम होती है, मोटिलिटी कम होती है, वो निकल के आगे ठीक से इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, निकल के सही जगह पे नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता. इस तरीके की चीजें हैं. अब सोल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे? तो एक ही सोल्यूशन जो अभी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई एग को निकाल के आपस में फर्टिलाइज करके सही जगह इम्प्लांट करना. इसके अलावा कोई और ऑप्शन डॉक्टर्स के पास में नहीं है. बट हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों ना अपने ओवरीज को ही स्ट्रेंथन कर दें, क्यों ना आप ग्रोथ को कम कर लें. वहां पे जो ग्रोथ हो रही है, कोई ना कोई वीक फैक्टर है जिसकी वजह से वो ग्रोथ हो रही है, जो ब्लॉक कर रहा है. तो पहली बात, डायग्नोसिस करके कि कौन सा वीक फैक्टर है, आपको डिजाइन किया जाएगा आपका कुंभक थेरेपी. अगर ऐसा लगता है कि देयर इज एन एक्सटर्नल इम्पेटस व्हिच इज आल्सो नीडेड, बाहर से भी कुछ देने की जरूरत है, उसको देके सपोर्ट मिलेगा, तो वी विल सजेस्ट सम रसायना व्हिच विल कंप्लीटली टेक केयर ऑफ योर जो ओवर ग्रोथ है, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं इसको, ओवर ग्रोथ या ब्लॉकेजेस हैं, इफ देयर इज अ सिस्ट, या फिर अगर वो सिस्ट आपके जैसे कहते हैं ओवरीज में है, उसको डिसॉल्व करने के लिए देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी, देयर आर रसायन कैन बी गिवन, उसको किया जा सकता है. सिस्ट नहीं है.
ओवर ग्रोथ होगा, सिस्ट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं दोनों तरीके से हो सकता है। अच्छा, ब्लॉकेजेस क्यों है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओवर ग्रोथ की वजह से ब्लॉकेज होता है, या फिर फेलोपियन ट्यूब सिकुड़ जाती है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा उसमें। जो नॉर्मल एनाबोलिज्म है वहां पे सेल्स को रिप्लेसमेंट वो नहीं हो पा रहा, तो वो सिकुड़ भी जाती हैं, सेल्स वीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे लाइनिंग्स जो हैं, जो लाइनिंग्स हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं, सूख जाती है, तो उसकी वजह से भी देयर कैन बी अ ब्लॉकेज। तो बहुत रीजन है ब्लॉकेज करने के, उन सब का लिए सॉल्यूशन एक ही है कि वो ब्लॉकेज क्यों हो रहा है उसको पता लगाना पड़ेगा, और फिर उसकी तरफ में काम करना पड़ेगा। बाहर से कुछ लेके अगर वो ठीक हो सकता है तो हम बाहर से सजेस्ट करेंगे, फिर आपको वो तभी करेंगे इफ यू कम टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम में ही कर सकते हैं, बाहर हम ये चीजें अभी रसायन जो भी हम यूज कर रहे हैं बाहर नहीं दे रहे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये एक परंपरा से आए हुए फॉर्मुलेशन है। वी डोंट वांट इट टू थ्रो इट आउट लाइक दैट। पहले उसकी को हम प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स के लिए अलाउ करेंगे, फिर बाद में देखेंगे आगे ये चल। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में मेरा और मेरा वाइफ ये दोनों को ही आना है या एक आने से चलेगा? दोनों को आना चाहिए, आइडियली दोनों को आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायग्नोसिस तो करवा लिया जाता है, डॉक्टर्स के पास में जाके लैब टेस्ट करवाते हैं, फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, मेल्स में हम टेस्ट यूजुअली नहीं करवाते और पता भी नहीं चलता, और करवा भी लेते हैं तो भी कभी कभी पता नहीं चलता। तो क्या है कि अगर आपको अपनी कैपेसिटी बनानी है तो दोनों को बनाना चाहिए, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जैसे हमने बताया वीर्य शुद्धि करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो मेल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेल बेसिकली सीड दे रहा है ना, तो सीड तो अच्छा होना चाहिए, वो कौन इंश्योर करेगा? हाँ, लेकिन जो कि मेरा जो मेडिकल इंक्वायरी हुआ है, मेरा स्पर्म काउंट अच्छा है, मोटिलिटी बहुत अच्छा है। हाँ, हो जो सकता है प्रॉब्लम अच्छा है, मैं ठीक कह है। रहा हूं हो सकता है अच्छा, आपका कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आप अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं क्या? ये हमेशा पॉसिबल है। हाँ, तो क्यों ना आप अपनी कैपेसिटी को अच्छा बढ़ाएं। जैसे हम कहा वीर्य शुद्धि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो कंसेप्शन से पहले प्लान सभी को करना चाहिए, तभी एक अच्छा लाइफ इनवाइट कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो तो आप बेसिक लेवल पे देख रहे हैं कि मोटिलिटी ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक है, बट द काइंड ऑफ एनर्जी योर स्पर्म होल्ड्स नोबडी नो, उसके लिए कोई टेस्ट ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, थैंक यू, तो आ जाऊंगा प्रोग्राम में। ओके। There is some question like the people want to go for IVF after June. So in this 2 months, is it will it be more supportive or support the IVF or something? I told you whatever you are going for, increase the probability of success of that also. क्योंकि आप IVF में चले जाएंगे, आप सोचते हैं एक बार में हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की इतनी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप आइडिया लगा रखे होंगे दिमाग में, तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाएं। 2 मंथ में तो काफी अच्छा आप सपोर्ट दे पाएंगे अपने शरीर को, बहुत कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे अपने शरीर की। Another IVF cycle is scheduled in May. Will it be helpful? Of course, it will be helpful. And also, there is some concern that will be asking you to stop any medications or any procedures that you are going under currently. We won't be asking you to stop any procedure or any medication. Whatever you want to do, you can do, but do kumbhak with it. Enhance your capability, enhance your strength, enhance your eligibility to conceive our life. So, any more questions? Just unmute yourself. Hello, ma'am. Yeah, please go ahead. मैम एंड सर, एक्चुअली मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सो वो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ इस प्रोग्राम के साथ, या फिर वो मुझे कम्प्लीटली मतलब स्टॉप करना पड़ेगा? नहीं, अभी कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बाकी चीज के लिए हम नहीं बोलेंगे आपको, वो आपकी मर्जी है। ये आप उसके, आप जो भी कर रहे हैं उसके भी चांसेस आप बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, फर्टिलिटी एस्पेक्ट को बढ़ाने का तरीका है। आप बाकी कुछ भी करते रहिए, उससे जो नुकसान होगा उसको भी कम करने के लिए आपको ये जरूर करना चाहिए। Okay, okay, sir. Yeah. Is it tough to perform Kumbhak technique? No, it is
It is not tough, but the thing is, you can do it on a chair, on bed, on a moving vehicle also if you are not driving. कहीं भी कर सकते हैं इसको, ये आसान है. It is So just like Kumbhak is breathing exercises. Like if you can breathe for no, what it is not breathing exercise, not at all. It is not breathing exercise. First of all, it is not pranayam, it is not yoga, it is not breathing exercise as such. जैसे मैंने बताया, for making any effort, Kumbhak is required. Now, what is Kumbhak? Kumbhak basically is hold. Now, hold of what? यहाँ पे we are talking about breath hold, but Kumbhak is not just breath hold. Holding a thought process in your mind is Kumbhak. आप एक थॉट को माइंड में रोकते हैं तभी तो यू डू थिंग्स विद दैट, तभी तो उस तरफ में जाती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ. सो होल्डिंग अ थॉट इन योर माइंड इज कुंभक. होल्डिंग एन इमोशन विद इन योरसेल्फ, अपने अंदर एक इमोशन को होल्ड करना, वो भी कुंभक है. लाइफ को होल्ड करना, यू आर लिविंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ना, 80 years 70 years वट एवर द लाइफ टाइम यू हैव, आपने उस टाइम तक अपने लाइफ एनर्जीज को होल्ड किया है ना, then only a lifespan is possible. So that is also Kumbhak. यूनिवर्स का भी एक लाइफ स्पैन है. देयर आर सो मेनी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यू, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस. व्हाट इज इंटेलिजेंस? होल्डिंग योरसेल्फ इन सच अ वे वेयर योर परसेप्शन इंक्रीजेस. अपने आप को इस तरीके से होल्ड करना, नॉट ओनली फिजिकलिटी, होल्डिंग योर माइंड, इमोशन एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इन सच अ वे वेयर योर परसेप्शन इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस. तो जिसे हम क्वालिटीज कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, they happen with hold only. There is no other option. If you want to increase your IQ, if you want to increase your EQ, if you want to increase your happiness quotient, बातों से काम नहीं चलने वाला. You will have to build capability for increasing that. और वो भी कुंभक है. तो कुंभक के बगैर you can't experience life. Now here we are talking about something which you have a little hold of, little control over. क्या आपके माइंड पे बहुत कंट्रोल है आपका? अगर मैं आपको माइंड का कुंभक करा दूं तो क्या कर लेंगे? नहीं, डिस्टॉर्शन हो जाएगा और भी, और डिफिकल्टी आ जाएगी. सो क्या इमोशंस का कुंभक करवा सकते हैं अभी आपको? नहीं, बहुत मिसकंसेप्शन आ जाएंगे. तो सबसे आसान क्या है? टू डू ब्रेथ होल्ड एंड क्रिएट अ ट्रिगर. ब्रेथ होल्ड के थ्रू एक ट्रिगर क्रिएट करें, वो ट्रिगर आपके अंदर की तरफ में डायरेक्शन दे ताकि वीक एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें. तो दिस इज कुंभक थेरेपी. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है क्या? नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है. एक्सरसाइज जो वर्ड है, इट इज ओरिएंटेड आउटसाइड. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे ओरिएंटेशन होगा तब वो एक्सरसाइज बनेगा. तो ये क्या है? आप इसको क्या बोलेंगे? कुंभक. से इट कुंभक. ये वर्ड फैशन में नहीं है, मगर बना दीजिए ना. वाई स्पेल इट रॉन्ग? वाई से समथिंग एल्स? नहीं, कुंभक कर रहे हैं. एंड दैट टू कुंभक थेरेपी, नॉट योगा, नॉट प्राणायाम. So हम कुंभक थेरेपी कर रहे हैं. ये फंडामेंटली थेरेपी है. एंड ऑफ कोर्स इट इन्वॉल्व्स मच मोर देन जस्ट अबाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. वी विल चेंज योर लाइफस्टाइल कंप्लीटली टुवर्ड्स हेल्थ एंड फर्टिलिटी. प्लीज सर लेट मी नो. एवरीडे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? एवरीडे आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, और उसमें इनिशियली 5-7 मिनट ज्यादा लग सकते हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू ऑन योर सिस्टम. उसके बाद once Kumbhak methods are into your muscle memory, it will be just your Kumbhak with closed eyes and 20 minutes. That is it. उससे ज्यादा नहीं लगता टाइम. इतना तो आप डिजर्व करते हैं खुद के लिए, है ना? हाँ, या श्योर. Yeah. Someone is asking, let me know about unexplained infertility. All reports are normal. I'm 36 and I'm not able to conceive. We will tell you why you are not able to conceive. आपका अभी डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा. We will tell you why you are not able to conceive. That is what our diagnosis will do. वो हमारा diagnosis करता. So once you come to the program, because and this is more like it is increasing unexplained fertility. There are a huge number of people who are coming in this category of unexplained infertility. So we will tell you why you are not able to conceive, why there is difficulty of conception, and why your fertility aspect is still weak, even though there is no reason in the medical science which they can describe. We will describe it. हम आपको describe करके बताएंगे. So egg quality can be improved, sperm quality can be improved, sperm count can be improved, AMH levels can be maintained, hormonal imbalance can be corrected,
ovarian cyst can be taken care of, chocolate cyst will get wiped off, fallopian tube blockage can be taken care of. Okay, so who should join the program? The program should be joined by the people who are having any issue in conceiving, definitely, by the people who are not planning now but might plan 5 years later. So they should learn the method to protect and maintain their fertility. Okay, it can be joined by the ladies or male also who do not have any concept of conceiving or not conceiving, but just want to maintain their overall health. Of course, they can join in too. So this program is not targeted just up to some symptoms or some calculations or some count. It is for your overall strengthening and yes, conceiving a baby too. Okay, so I'll add on to that, people who feel responsible towards humanity, who want to bring life, who do the generation, the next generation, who do not easily get into disease, who are more talented and of a higher quality, जो भी ये responsibility लेना चाहते हैं, they should plan their pregnancy and do this, strengthening the human system, increasing the capability of human system, increasing the eligibility of holding on to higher forms of life. So how much time will it take to conceive after Kumbh? Just give yourself 40 days after customized module. The 40 days uninterrupted practice can change you, can transform you completely, and the chances will increase multifold. So just give yourself that time because you deserve it. Also, someone asked for a demo. We will be sharing our genetic immunity module in the WhatsApp group. You can try that too. So now contribute towards evolution process. Give yourself some time, some effort that you deserve. Be more eligible parents. And okay, Tanya ji, you have raised hand. Please unmute yourself and ask your question if you have any. Yeah, I just want to know कि अगर is there any free session available? Means मेरे partner जो है वो उन्होंने join नहीं किया है and उनका थोड़ा सा रुझान एलोपैथ और ये सब में रहता है, तो मुझे थोड़ा free session कुछ है अगर आपके पास available तो. Ma'am, we will be sharing recording of the session. Okay, give us some time so the video gets processed. You can ask your husband to watch the recording and contact us in case of any confusion or clarification. Thank you so much, ma'am. Please share the recording of today. Definitely, it will be shared. Don't worry. Thank you. Thank you so much, ma'am. So give yourself a chance, make yourself more eligible, evolve yourself, transform yourself, invite the divine and get it delivered at your womb because you deserve it. And बनता है, इतना तो बनता है. अपने ऊपर टाइम दीजिए, हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, कुंभक कीजिए. इट विल एनहांस यू इन एवरी वे पॉसिबल. हमें कांटेक्ट कीजिए किसी भी तरह के कंफ्यूजन्स के लिए. वी विल बी शेयरिंग दिस रिकॉर्डिंग आल्सो एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स टू द मेंटर्स नेहा सहगल एंड विथिका जैन. साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेदिनी. नमस्कार.